Hello everyone, welcome to the first episode of India Through Education by Soham. My name is Rida Fatima Akbar and we have Dr. Sanjay Kumar of Harvard University with us, the visionary mind behind Soham, to provide his insightful knowledge. So Sir has joined us today to provide his insights and vision about this platform, India Through Education, where we'll be sharing a lot of information and knowledge about education, about career, about the current trends which are there in the society related to education. So, sir, we have chosen this day specifically, which is National Education Day, and it is the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad ji, sir. So, what do you think? Why did you choose this specific day? I think I strongly feel that, if India has to be built well as a country, as a nation, we must invest in people's education. And National Education Day, as you rightly pointed out, this year's, focus is invest in people, invest in, people's education. That is a theme. And so no other day would have been much better than this day to start this podcast series, which I have been thinking of starting through Soham. And I think this is the most appropriate day to start so that it has significance and it also carries value. And, we all get remembered of, our first education minister's Maulana Abul Kalam Azad ji's principles. And also, we remind ourselves as a nation, as a society, as a country, that we all have that responsibility of, how do we educate people, how do we help, the rest of the country, or, if we get educated, it is our responsibility to educate others, to help others to get educated, and I am a strong believer in that. And I think this particular day is apt for launching this. Very well said, sir. So, what is the main aim or objective that we are trying to fulfill through this platform, through the podcast of Soham? Soham Education being an impact-driven journey for students, how is this podcast going to help them, or what is the aim that we are trying to achieve here? Yeah, so we want to do a couple of things through India Through Education. One is that, by bringing experts from different industries, we want to, we want to organize shows with different industry experts where, they will be sharing about different prospects in those industries, and that will help a lot of students to learn from them, so that is one thing. So where we have students in the focus and their learning in the focus. Second, we want to bring, people who have done extraordinary work in education sector, and they have been contributing in the nation building process. So we want to bring them and talk to them and understand, their perspective and how they have been contributing, so that they can be inspiration for others, so that the others can also work towards doing good things, in the education sector. And third, that we want to bring, people who have done extraordinarily in their life, or who are doing very, good things in life after their education, so their central theme was education, even against all odds, even though they were poor, even though, their financial condition was not good or social condition was not apt, then they did really well in their life, or they are doing very well in their life. So they are the real inspirations, so how do we bring them on one platform so that, they can become inspirations for the students or the upcoming generation. So these are three broad areas where we want to help students through exposure, through, bringing experts in from different sectors, and B, we want to bring people who have been doing amazing work in education sector, and their contribution is valuable. And C, we want to, bring students or successful professionals, those who have achieved in their life against all odds, So these are three main pillars of India Through Education. I feel that, if we have,
composite way of looking at education sector in a holistic way, we will have a correct messaging, correct way of learning from all of these. Correct. Correct. So, like you said, sir, what is one of the ideology or one principle of Maulana Abul Kalam Azad ji that you particularly follow or you relate to the most amongst all the other things that you believe in, and that one thing you also want to suggest to the youngsters of today who are emerging, who are getting a lot of new techniques, a lot of amenities, a lot of infrastructure, technology, everything is up to date for them. So what is that one principle that even today it applies? This is a very, this might be a very old ideology from now, but this is something very important for them to learn at this stage of their life. I think, I will break this into two parts. One is that the way he, advocated for universalization of basic education. Absolutely. And second, free education up to grade 12th. So that is something very important, and our state governments, national government is trying very hard to do that. But, the quality is missing. So how do we bring quality into education is very important. It's like the kind of teaching you provide to students, you have the similar output. So it's all about input and output. Right. So if you are not providing the young students up to grade 12th high quality, teaching or infrastructure or learning ecosystem, then you will not be able to produce good quality human resource, good quality talent, good quality professionals in your country. So I think one thing is important that to have, is that government is providing facilities, government is giving free education, but the other thing is it's all about quality. So I think even the students, as you mentioned, so the second part of my answer would be that, the students who are taking education, free education, or the parents who are taking free education through government schools, I would encourage them to demand for better education. So, unfortunately, in many state government schools, you would see that both students and parents are mostly, they are more concerned about free dresses or free bicycles or free food, Right. but not about, they are not concerned about education. So how do they ask for better quality education? I think that is a mindset we need to change in our country. Absolutely. Absolutely. So, sir, अभी currently in the society, बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, आपके करंट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि बच्चों को क्या चैलेंजेस फेस होते हैं इन चूजिंग देयर हायर एजुकेशन, और मे बी आफ्टर दैट what stream to choose for college, or maybe even in careers, what are the challenges that they are facing? I think there are challenges at two levels. One is that कि सोसाइटी का प्रेशर होता है और पीयर प्रेशर होता है, उसमें दे टेक रॉन्ग डिसीजंस दैट एक होड़ सी बनी हुई है कि इंजीनियर्स बनना है तो सब कोटा जा रहे हैं, और फिर मेडिसिन करना है तो उसके पढ़ाई के लिए कहीं और जा रहे हैं. तो ये एक जो पीयर प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर है, एक चैलेंज है, और दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू ब्रेक. एंड द सेकेंड इज़ कि द पेरेंट्स एंड द किड्स are not well exposed to various options available to them within the country, and various educational options क्या हैं, and career options क्या हैं. And I would say कि ये जो schools है और colleges हैं, जो youngsters जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे उनको वो proper exposure और guidance नहीं मिल पा रहा है. If you take example of several private schools, even those who are not very expensive schools in small towns, there are so many private schools, hundreds में numbers हैं ऐसे ऐसे schools के. एक एक शहर में आपको
25, 30, 40, 50 ऐसे नंबर्स में आपको स्कूल्स मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स. सो फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स. एज इन प्राइवेट स्कूल्स में देयर आर नो काउंसलर्स, देयर इज नो वन टू गाइड देम कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपका स्किल किस चीज़ में है, आपका ये टैलेंट है तो आप इस डायरेक्शन में जाओ, और उसके एब्सेंस में वो बच्चे जो है बेचारे वो समझ नहीं पाते हैं. वो ये देखते हैं कि अच्छा बड़े बड़े होर्डिंग्स क्या लगे हुए छोटे शहरों में, तो ये IIT JEE में टॉप कर रहे हैं, मेडिकल नीट में टॉप कर रहे हैं, तो सबको लगता है कि यही एस्पिरेशन है, यही दुनिया है, यही आखिरी सच है. और जबकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि द वर्स्ट थिंग जो हमारे समाज में है वो ये कि हमारा टैलेंट कुछ है और हम कर कुछ रहे हैं, और उस चक्कर में हम फेलियर्स के थ्रू जाते हैं और मल्टीपल टाइम्स हम फेल करते हैं. उसके बावजूद भी हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं होता है. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग नीड्स टू बी करेक्टेड. उसका उपाय ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे करियर काउंसलिंग का और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उसका एक बिल्कुल होलिस्टिक वे में गाइडेंस का सिस्टम होना चाहिए. काउंसलर्स होने चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए. करेक्ट. तो ये जो टैलेंट और पैशन एज वेल एज इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन इज हाउ इम्पोर्टेंट. और इवन इफ वन थिंग इज मिसिंग, हाउ ड्रास्टिकली कैन इट चेंज और इफेक्ट द करियर ऑफ अ पर्सन. आई थिंक पैशन है तो इसका मतलब है कि उसको इंटरेस्ट है उस चीज़ में. तो हम इंटरेस्ट को अगर पैशन के साथ मर्ज कर दें, एंड पैशन एंड टैलेंट, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन और अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि अगर आप अपने पैशन और टैलेंट से अलग कोई काम करते हैं, देन यू आर नॉट अ हैप्पी पर्सन. आपका सोल कुछ और करना चाह रहा है और आप अपने बॉडी से कुछ और करा रहे हो. इट्स लाइक दैट. सो आई स्ट्रांगली फील कि हर बच्चे को, हर पेरेंट को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसका टैलेंट किस चीज़ में और उसका पैशन किस चीज़ में. और इस चीज़ का अगर कॉम्बिनेशन में अगर कोई पढ़ाई करता है और कोई वो काम करता है तो उसका सक्सेसफुल होना लिखा ही हुआ है. वो मतलब नोबडी कैन बीट दैट पर्सन, बिकॉज मैं अपने मन का कर रहा हूँ. अगर मैं अपने मन का नहीं कर रहा हूँ तो मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ या पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ. और उसी में ऐसी डाइकोटमी है कि उसमें फिर बच्चा या युवा अवस्था में लोग मतलब डिसोरिएंटेड हो जाते हैं या फिर ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन का ही नहीं कर रहे. सो इन टुडेज़ वर्ल्ड सर, हम देखते हैं कि बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब चीज़ों की प्रोविजन है. अगर हम Tier 1 सिटीज़ को ले लें कि जहाँ पर बच्चे they are provided with every possible thing, the textbooks, through internships, through on ground activities. But Tier 2 और Tier 3 में ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, या वो बच्चे उस चीज़ को नहीं अवेल कर पा रहे हैं. तो ये जो हम ऑन ग्राउंड चीज़ें करवाते हैं या बच्चे करना चाहते हैं जिनके बारे में इनको नहीं पता है, तो वो उनके करियर में बाद में जाके कैसे इफेक्ट करता है. कि फॉर एग्जांपल अब बच्चे ने थियोरेटिकली बुक्स पढ़ के सब चीज़ें एग्जाम्स में पास कर लिया, अच्छे मार्क्स लाए हैं, ही हैज़ डन एवरी पॉसिबल थिंग टू बिकम अ गुड स्टूडेंट, बट टू हैव अ प्रॉपर करियर इन द जॉब इंडस्ट्री मार्केट, जो बच्चे Tier 2 Tier 3 से आते हैं, what are the challenges they are facing, which they are not aware of कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, and it eventually breaks them down and somewhere relates them to failures, which is very incorrect. Correct. I think for every student it is very important कि हम अपने आस पास के challenges को समझें. outside classroom क्या challenges हैं, क्या problems हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर कोई भी कंपनी देखो, कोई बड़ा ब्रांड देखो, तो हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. करेक्ट. तो और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हम बड़ी बड़ी कंपनियां बिल्ड करते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं. तो ये बचपन से ही हम कैसे सिखाएं बच्चों को, ये बड़ा डिस्कनेक्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम किताबी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाहर की लर्निंग्स नहीं होती है. तो उसके कारण क्या है कि बच्चा जो है वो परफेक्ट नहीं हो पाता है और वो फिर स्ट्रगल करता रहता है. जब वो अपने करियर में जाता है तो उसको ना तो उस तरह की एक्सपोजर होती है, और बच्चे भी बड़ा शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं आज के डेट में. आई सी लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स
and even school students, they want to do internships. 1 week का 2 week का internships just to produce their profile, कि हमारा प्रोफाइल बिल्ड कर दो, हमारा प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए. What do you mean by प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए? Just that you are doing some small internship here and there and you want to write it on your CV and just कि ये अच्छा दिखेगा आपके CV पे. I think that's a very very wrong approach. I think अगर आपको इंटर्नशिप करना है, अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप करना है या पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, तो ये बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा ही डीप होना चाहिए. ये नहीं कि आप हवा में सब कुछ सीख रहे हो. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्विमर, आपको डीप डाइव करना होता है, डीप वाटर में जाना होता है. ये आप जो हल्का हल्का तैर के आप चाहते हो कि आप कहीं ओलंपिक साइज का जो स्विमिंग पूल है उसमें आप तैर लोगे, ये नहीं हो सकता है. सो द ड्रीम्स आर बिग, एस्पिरेशंस आर बिग, बट हमें मेहनत नहीं करना है. हमें कम समय के इंटर्नशिप्स में हमें अपना प्रोफाइल बिल्ड करना. आई थिंक that needs to go. That is something we must get rid of. Yeah, it's a very easy thing to get कि यहाँ internship कर लो, वहाँ internship कर लो. Correct. I don't think they learn anything. It's just that अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या अच्छे कॉलेज में होते हैं, उनका आर्टिकुलेशन अच्छा होता है, तो वो सब बताने लगते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बट जो सुपरवाइज़र होगा, जो खुद समझेगा, या जो एम्प्लॉयर होगा या इंटरव्यूअर होगा, वो समझ सकता है कि किसने सही काम किया है या डीप काम किया है या उसके लिए कौन ज़रूरी है. So, in a family, parents are the backbone of their children, right? In the early years also, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्कूल में जा रहे होते हैं, they want the best for us. They want best education. They want best opportunities that we can avail and make our lives better and others as well, right? तो इसमें पेरेंट्स का जो एवोल्यूशन हुआ है in terms of education as well as careers also, how interested are parents now than they were earlier? पहले 30 साल 40 साल पहले की हम अगर बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें कैसी थी और अब आपने पर्सनली ये चीज़ कैसे देखी है इवॉल्व करते हुए? I think that's a very interesting question. Parents are also evolving as parents. I think exposure काफ़ी हो रहा है. कई बड़े शहरों में आप देखेंगे पेरेंट्स आर वेरी ओपन अबाउट देयर किड्स परसुइंग डिफरेंट थिंग्स, और दे आर वेरी ओपन अबाउट बच्चा जो करना चाहता है वो उन्हें करने दे रहे हैं. बट आई थिंक आप ज़रा स्मॉलर सिटीज़ और टाउन्स में आप जाएंगे तो स्टिल और ये जो नए फर्स्ट जनरेशन लर्नर के बच्चे हैं उनके लिए भी ये चैलेंज है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है, एक बड़ा मिडिल क्लास का तबका है, मैं कहूँगा बड़े शहर में भी जो माइग्रेट होके आए या फिर अभी जो छोटे शहरों में रह रहे हैं, वो उसमें ना कहीं जो खुद नहीं कर पाते हैं वो अपने जीवन में, वो चाहते हैं हमारे बच्चे करें. तो ये जो अपना सपना होता है वो जब हम बच्चों पे थोपते हैं, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है. अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आईएएस नहीं बन पाए तो मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, इंजीनियर नहीं बन पाए तो इंजीनियर बन जाए. ये कैसे हो सकता है? मतलब वो आपका सपना था, अब जो आपने बच्चों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, वो गलत है कि अपना सपना आप अपने बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. बहुत पेरेंट्स पॉजिटिव हुए हैं बच्चों के इंडिपेंडेंस को लेकर, बच्चों के इंडिपेंडेंटली करियर के बारे में सोचने या चूज़ करने देने के बारे में. बट देयर आर स्टिल लॉट ऑफ पेरेंट्स, आई थिंक दे नीड टू इवॉल्व. Right. So this evolution has reached only to certain pockets, yeah. Yes, to certain pockets of the country where there is still a lot more which can happen, a lot more which can be bridged. It's not happening very fast. Yes, which I think has come now more from the Western countries because people are now, the kids are going there, they come back. और उसके बाद फिर सोसाइटी में वो चीज़ होती है जब हम आस पड़ोस में देखते हैं, अरे भाई इसका बच्चा बाहर गया है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पढ़ने. बहुत तरह के एक्सपोजर है. अब यूट्यूब पे एक्सपोजर है, इंटरनेट पे एक्सपोजर है अबाउट डिफरेंट करियर्स, डिफरेंट थिंग्स. Absolutely. छोटे छोटे शहर में मैं जब बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो अभी कुछ लड़कियों से मिला मैं एक सरकारी स्कूल में अपने होम टाउन में कटिहार में. तो वहाँ पे लड़कियाँ पूछ रही थी कि सर हम एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, हम कैसे बनेंगे, है ना. अब आप
इमेजिन करो 10 साल 15 साल पहले ये क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछते थे। एक लड़की पूछ रही है कि सर हमको पुलिस में जाना है ना, तो अब उनके अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि नए नए सेक्टर्स कैसे खुल रहे हैं, तो उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। एक पूछ रही है कि भाई हमें बैंक पीओ बनना है। तो ये उन तबके के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन, मतलब अभी तक वो उन्होंने पढ़ाई, उनके पेरेंट्स ने पढ़ाई नहीं की है। ये जो लर्नर्स हैं, ये जो बच्चियां हैं जिनसे हमने इंटरेक्ट किया, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो अब वो इंजीनियरिंग और मेडिसिन वाला सिर्फ क्वेश्चन जो है धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है, और वो देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अभी भी लाखों बच्चे, अभी आप देखो ना कोटा में हाउ मेनी किड्स हैव कमिटेड सुसाइड्स, 24-25 किड्स अभी तक साल में कर चुके हैं। हर साल कितने बच्चे कर रहे हैं। इट्स सो सैड। इवन आईआईटी में जाने के बाद बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू adjust with the education or the rigidity of the system, or they are unable to fit into the system. तो वो आईआईटी को एक गोल बना देते हैं हमारे पेरेंट्स या फिर हमारा सोसाइटी, और सब उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। उसमें से कई बच्चे जो नहीं कर पाते हैं वो कोटा जैसे जगह में सुसाइड करते हैं। कुछ बच्चे जो आईआईटी नहीं करना चाहते हैं या वो उसका बर्डन नहीं झेल पाते हैं, वो आईआईटी में जाने के बाद सुसाइड करते हैं। सो इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है, बच्चा क्या करना चाहता है, वो समझना सबसे ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आप उसको एवेन्यूज़ दो, उसको पढ़ाई करवाओ, उसके हिसाब से उसको जॉब्स करवाओ। आई थिंक वी नीड मोर हैप्पियर पीपल इन आवर कंट्री रादर देन पीपल और यंगस्टर्स कमिटिंग सुसाइड। हम नहीं चाहते कि हम ऐसा नेशन बिल्ड करें। सो ये जो डिजिटलाइजेशन की आपने बात करी सर, कि ये हाउ एडवांटेजेस और हाउ डिसएडवांटेजेस हैज़ दिस पर्टिकुलर डिजिटल थिंग बिकम। एक तरफ हम देखते हैं कि बच्चों को इतना एक्सेस है यूट्यूब का, इंटरनेट का, जहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। इन एंड अराउंड इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, लॉट मोर थिंग्स आर हैपनिंग एंड दे आर गेटिंग टू नो दैट, बट देयर आर डिसएडवांटेजेस दैट एज वेल, कि दे इंटेंट या फिर वो ऐसे सपने देख लेते हैं कि दिस इज़ एब्सोल्युटली अचीवेबल। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत की चीज़ नहीं है, बस हमने इंटरनेट पे कोई चीज़ एनरोल करी, फॉर्म भरा, और फिर हम इस पे चल पड़ेंगे, या हमारे लिए भी इतना ही आसान होगा। ये जो एक मिसकंसेप्शन बना, what do you think, how can through this podcast, through this हमारे ऑडियंस तक हमें ये चीज़ पहुंचानी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, and again I will give answer in two parts. One is that advantages of digitization and also the digital content, and the second part is how challenging or how disturbing this is for our youth or our kids. That also we need to understand, and we all understand that. How do we set the bar, and how do we differentiate this is very important as kid or as society or as parent. मुझे लगता है कि जो इंटरनेट रेवोल्यूशन है वो एक्चुअली में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। जैसे कि आप गांव से भी बैठ के, अगर आपके पास डिवाइस है तो आप गांव से भी बैठ के यू कैन अंडरटेक क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आप कर सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर whatever you want to know about different educational opportunities, career opportunities. ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इससे आपको फ़ायदा बहुत हो रहा है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि उसको गलत तरीके से डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं, अपने डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उसमें आप देखें कि चाहे वो गेमिंग है ना, जो मुझे लगता है कि वो बहुत एडिक्टिव होता है, एंड उसके कारण हमारे बच्चे पढ़ाई से दूर जाते हैं और गेमिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है उनका, और इतना लेथार्जिक बना देता है उन्हें कि वो ना पढ़ाई के बारे में सोच पाते हैं और ना उनको अच्छी नींद आती है, और वो परेशान रहते हैं। तो गेमिंग एक उदाहरण है। फिर ये बहुत सारे कंटेंट ऐसे आते हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए या युवाओं को नहीं देखना चाहिए, और उन कंटेंट पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे कंटेंट को देख कर जो बच्चों के अंदर जो
मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है चीज़ों के बारे में, वो ना तो इंडिविजुअली अच्छा है उनके लिए और सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है एट लार्ज, बिकॉज बहुत सारा जो वायलेंस क्रिएट होता है वो कंटेंट के कारण भी हो सकता है, बहुत सारे गेम्स के कारण हो सकता है। तो इसमें से हम बच्चों को कैसे निकालें, और इसके लिए अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यह कंपल्सरीली हर स्कूल में डिजिटल कंटेंट और डिजिटल डिवाइस को मैनेज करना बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से इट्स लाइक यू नो इट्स ऑन आवर डोर, सबके घर के सामने वो आ चुका है, एंड वी डोंट नो हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर किड्स फ्रॉम द सेम, यू नो इट्स अ it is one of the biggest challenge which we are facing today in our country, not only in our country but globally. But how do we address this challenge is something we all need to think. स्कूल लेवल पे काम करना चाहिए, पेरेंट के लेवल पे काम करना चाहिए, और बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कंटेंट वो देखें, कौन सा गेम वो कितने घंटे खेलें नहीं खेलें, ये बहुत ज़रूरी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपके बहुत ज़्यादा कीमती समय और आपके इंसाइट्स के लिए, जिससे कि वी वांट आवर ऑडियंस टू लर्न मोर, know more, and be able to avail as much information and knowledge they can from this platform. So thank you so much. Thank you.